Good morning, students. So, today we are going to start lesson 9, and the name of the lesson is The Bond of Love. This lesson is written by Kenneth Anderson. So, you can see photograph of Kenneth Anderson. He is in a suit, and on the other side, there is a photograph of a panther and a man. That man is Kenneth Anderson, and he is a hunter. So, mean to say, Kenneth Anderson. Kenneth Anderson is a writer and a hunter. So let's know more about Kenneth Anderson. Kenneth Anderson, Kenneth Douglas Stewart Anderson was an Indian-born British writer and hunter. He wrote books about his adventures in the jungle of South India. So Kenneth Douglas Stewart Anderson was an Indian-born British writer. He born in India, but he belongs to British writer, and he was the hunter also. So he wrote many books about his adventures in the jungle of South India. So साउथ इंडिया के जंगलों के बारे में उसने बहुत सारी स्टोरीज, बहुत सारी कहानियाँ जो उसके साथ हुई, जो उसने की, दिस ऑल एडवेंचर्स वर रिटन इन द बुक्स. So he was born on March 8, 1910 in Bolaram, Sikandrabad in India. So he born in India, and where in India the place is there is Bolaram, Sikandrabad. So when did he born? 8 March 1910. ये 8 मार्च 1910 को पैदा हुए थे. Addison went to Bishop Cotton Boys School and also studied at St. Joseph's College, Bangalore. He died in 1974 from cancer. When he was 64 years old, he died due to cancer from cancer. So now the introduction part of the lesson is, this is the story of love and friendship. This is the story of love and friendship between an animal and human being. ये जो कहानी है, ये कहानी प्यार और दोस्ती की कहानी है. प्यार और दोस्ती एक जानवर और एक इंसान के बीच में. दिस स्टोरी इज डेवलप्ड अराउंड द कंसेप्ट दैट लव इज रेसिप्रोकल. ये जो कहानी है, ये कहानी का जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट है कि जो प्यार है वो रेसिप्रोकल है. अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो बदले में उससे आपको प्यार मिलता है, भले ही वो एक जानवर हो. So even animals respond sincerely to the affection and care shown to them by human beings. So even animals के जानवर भी हमें रिस्पॉन्ड करते हैं सिंसियरली, बड़े प्यार के साथ, अगर हम उन्हें प्यार और अपनी केयर उनको शो करते हैं तो. In fact the emotional bond that animals form is so strong that they do not easily forget those who care and love them. सो इन फैक्ट वास्तव में द इमोशनल बॉन्ड, जो हमारा इमोशनल बॉन्ड होता है, जो हमारे विचारों का बंधन होता है, दैट एनिमल फॉर्म, जो एनिमल्स मानते हैं, बनाते हैं, इज सो स्ट्रॉन्ग, वो बड़ा मजबूत होता है, दैट दे डू नॉट इजीली फॉरगेट, उसे आसानी से नहीं भूलते हैं. दोज हु केयर एंड लव दैम, जो उनको प्यार करता है, उनकी देखभाल करता है. So one day author found a bear cub in a sugarcane field. तो एक दिन ऑथर को एक सुगरकेन के खेत में एक बियर कब, एक भालू का बच्चा मिलता है. He took it home, वो उसे घर ले आता है, and presented it to his wife, और अपनी वाइफ को प्रेजेंट कर देता है, दे देता है. The bear and author's wife developed a great love for each other. जो ऑथर की जो वाइफ है और भालू का जो बच्चा है, उनके बीच में प्यार हो जाता है, एक दूसरे से बहुत प्यार करने लग जाते हैं. शो अबाउट द बॉन्ड, इसलिए जो बॉन्ड है, जो बंधन है, जो रिश्ता है बिटवीन ऑथर्स वाइफ, ऑथर की वाइफ के बीच, एंड बियर और भालू के बीच में, डिस्क्राइब्ड हेयर, इस स्टोरी में वो डिस्क्राइब किया गया है. सो लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ द एक्सप्लेनेशन. आई विल बिगिन विद ब्रूनो, माई वाइफ्स पेट स्लॉथ बियर. तो मैं शुरू करूँगा. हु इज़ आई हेयर? आई इज़ एंडरसन, कैनेथ एंडरसन. जो वो कह रहा है कि आई विल बिगिन विद ब्रूनो, मैं ब्रूनो के साथ शुरू करूँगा. माई वाइफ्स पेट स्लॉथ बियर. एंड हु इज़ दिस ब्रूनो? ब्रूनो जो है उसकी वाइफ का पालतू आलसी भालू है.
आई गॉट हिम हर आई गॉट हिम फॉर हर बाई एक्सीडेंट, मुझे ये मिला था फॉर हर उसके लिए बाई एक्सीडेंट. सो ही गॉट दैट बियर कब accidentally. So how did it happen? How did he got that beer cup? तो it is told here. So 2 years ago, 2 साल पहले, we were passing through the sugarcane fields near Mysore. जो मैसूर के पास हम गन्ने के खेतों से गुजर रहे थे. People were driving away the wild pigs. जो लोग थे वो अपने खेतों से इसको जंगली सूरों को भगा रहे थे. बाय शूटिंग एट दैम, उन पे निशाना लगा के, उनको गोली मार के. सम वर शॉट, कुछ को तो गोली मार दी गई. एंड सम एस्केप्ड, और कुछ बच गए. वी थॉट दैट एवरीथिंग वाज ओवर व्हेन सडनली अ ब्लैक स्लॉथ बियर केम आउट पेंटिंग इन द हॉट सन. सो वी थॉट दैट एवरीथिंग वाज ओवर, कि हमने सोचा कि सब कुछ फिनिश हो चुका है. मीन टू से जो विल्ड पिग्स थे वो भाग चुके हैं या वो मारे जा चुके हैं, तो ये मान के वो बैठे हुए थे. सो सडनली, तो तभी अचानक, ए ब्लैक स्लॉथ बियर, एक काला आलसी भालू, स्लॉथ मीन आलसी भालू, केम आउट, बाहर निकला. पेंटिंग, हाँफते हुए इन द हॉट सन, गर्म सूर्य में या गर्मी में, तो वो हाँफते हुए बाहर निकला. सो एस्केप्ड मीन बच निकलना. सो नाउ नेक्स्ट वन इज, नाउ आई विल नॉट शूट ए स्लॉथ बियर वॉन्टली, और मैं नहीं चाहता था कि मैं उस स्लॉथ बियर को, उस आलसी भालू को शूट करूं, गोली मारूं. अनफॉर्चुनेटली फॉर द पुअर बीस्ट, और दुर्भाग्य से उस बेचारे बीस्ट के लिए, जानवर के लिए, वन ऑफ माई कंपेनियंस, मेरे एक साथी ने, डिड नॉट फील दैट वे अबाउट इट, जो किसने उसके बारे में नहीं सोचा था. एंड प्रॉम्प्टली मीन यस यू क्विक, तुरंतली, यस यू क्विक मीन क्विकली, या तुरंत, उसने शॉट द बियर ऑन द स्पॉट, उस बियर को, उस भालू को मौके पे ही गोली मार दी. एज वी वॉच द फॉलन एनिमल, और जब हमने उस पड़े हुए एनिमल को देखा, वी वर सरप्राइज्ड, हम हैरान थे. टू सी, देखकर, दैट की, द ब्लैक फर ऑन इट्स बैक मूव्ड, कि उसकी पीठ के ऊपर जो ब्लैक फर थे, काले बाल थे, वो हिल रहे थे. एंड लेफ्ट द प्रोस्ट्रेट बॉडी, प्रोस्ट्रेट मीन पड़ी हुई, नीचे पड़ी हुई बॉडी से वो अलग हो रहे थे. देन वी सा इट वॉज ए बेबी बियर, तब हमने देखा कि वो एक छोटा भालू का बच्चा है. दैट हैड बीन राइडिंग, जो सवारी कर रहा था, ऑन इट्स मदर्स बैक, अपनी माँ की पीठ के ऊपर. व्हेन द सडन शॉट हैड किल्ड है, और जब उसको गोली मारी गई तो वो अपनी माँ की पीठ पे बैठा हुआ था. द लिटिल क्रिएचर रैन अराउंड इट्स प्रोस्ट्रेट पेरेंट मेकिंग ए पिटीफुल नॉइस, और जो छोटा जानवर था, मीन बियर कब जो था, वो अपने पेरेंट, अपनी माँ के बॉडी, गिरी हुई बॉडी के चारों ओर चक्कर काट रहा था और पिटीफुल नॉइस कर रहा था, यानी कि रो रहा था. आई रैन अप टू इट टू अटेम्प्ट कैप्चर, तो मैं उसको पकड़ने के लिए उसकी तरफ दौड़ा. इट स्कूटेड इनटू द सुगर कैन फील्ड, और वो भाग गया, स्कूटेड मीन भाग गया, इनटू द सुगर कैन फील्ड, गन्ने के खेतों में. फॉलोइंग इट विद माई कंपेनियंस, और मैंने उसका पीछा किया अपने साथियों के साथ. आई वॉज लास्ट एबल टू ग्रैब इट, और मैं उसे पकड़ सका, लास्ट में मैं उसे पकड़ सका, मैंने उसको पकड़ लिया. बाय द स्कार्फ, उसके गर्दन के बालों से. एंड वाइल इट स्नैप्ड, और उसने फिर झपट्टा मारा. एंड ट्राई टू स्क्रैच मी, और मुझे स्क्रैच करने की कोशिश की. विद इट्स लॉन्ग हुक्ड क्लास, अपने लंबे पंजों के साथ. यस, वी पुट इट इन इन वन ऑफ द गन्नी बैग्स, हमने उसको एक गन्नी बैग में रखा. वी हैड ब्रॉट, और हम उसे ले आए. व्हेन आई गॉट बैक टू बेंगलोर, आई ड्यूली प्रेजेंटेड इट टू माई वाइफ, और जब हम बेंगलोर पहुंचे तो मैंने अपनी वाइफ को ही प्रेजेंट कर दिया, गिफ्ट दे दिया. सी वॉज डिलाइटेड, वो बड़ी खुश थी. सी एट वंस पुट ए कलर्ड रिबन, तो मेरी वाइफ ने उसके गले में एक कलर्ड रिबन डाल दिया. एंड आफ्टर डिस्कवरिंग द कब वॉज अ बॉय, और ये पता लगा कि जो कब है, भालू का जो बच्चा है, वो एक बॉय है, वो एक मेल है. सो शी क्रिस्टन इट ब्रूनो, तो उसने उसे नाम दे दिया ब्रूनो. यस, सो डिस्कवरिंग द कब बॉय,
ए बॉय, कि पता लगाया कि ये जो बॉय डिस्कवरिंग पता लगाया कि जो ये बच्चा है ये एक लड़का है, मीन टू से एक मेल भालू है, तो उसे नाम दिया गया क्रिस्टेंड इट। क्रिस्टेंड इट मीन नेम्ड इट ब्रूनो। ब्रूनो सुन टुक ए ड्रिंकिंग मिल्क फ्रॉम ए बॉटल, और ब्रूनो ने जल्द ही बोतल से दूध पीना स्टार्ट कर दिया। इट वॉज बट ए स्टेप फर्दर, और इससे आगे, एंड विद इन ए वेरी फ्यू डेज, और कुछ ही दिनों में, ही स्टार्टेड ईटिंग एंड ड्रिंकिंग एवरीथिंग एल्स, उसने सब कुछ खाना और पीना स्टार्ट कर दिया। एंड एवरीथिंग इज द राइट वर्ड, और हर एक राइट प्रॉपर वे में। फॉर ही एट पोरेज, वो दलिया खिचड़ी खाता, मेड फ्रॉम एनी इंग्रेडिएंट्स, किसी की भी बनी हुई खिचड़ी वो खा लेता था। वेजिटेबल्स में खाता, फ्रूट्स खाता, नट्स खाता, मीट खाता, करी एंड राइस रिगार्डलेस ऑफ कॉन्डिमेंट्स, और वो सारे सामग्री, सारी कॉन्डिमेंट्स, कॉन्डिमेंट्स मीन क्या है, मसालों से बनी हुई चीज़ें भी खाता था। एंड यस, चिलीज, ब्रेड, एग्स, चॉकलेट्स, स्वीट्स, पडिंग, आइसक्रीम, एड्स, और सारी चीज़ें वो खाता था। फॉर ड्रिंकिंग, पीने में वो क्या क्या, दूध पीता, चाय पीता, कॉफ़ी पीता, लाइम जूस है ना, नींबू का जूस पीता, एडिड वाटर, सोडा वाटर पीता है ना, बटर मिल्क भी वो लेता था, बियर, एल्कोहलिक लिक्वर है ना, शराब वगैरह भी वो पीना स्टार्ट कर दिया था। इनफैक्ट एनीथिंग लिक्विड, जो भी कुछ उसे दिया जाता है लिक्विड में वो खा लेता था। इट ऑल वेंट डाउन विद रेलिस, और उसके साथ उसको रेलिस मीन क्या है यहाँ पे, रेलिस का मतलब है बड़े स्वाद के साथ हर चीज़ को खा रहा था। एंड टेकिंग एंजॉयफुल लाइफ। सो द बियर बिकेम वेरी अटैच्ड, जो भालू था वो वेरी अटैच्ड हो गया था, किसके साथ में, टू आवर टू अल्साटियन डॉग, हमारे दो अल्सेसन डॉग्स के साथ में। एंड टू ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द टेनेंट्स लिविंग इन आवर बेंगलोर, और जो हमारे घर में, हमारे बेंगलोर में जो टेनेंट्स थे, किराएदार थे, उनके बच्चों के साथ भी वो बड़ा अटैच्ड हो गया था। ही वॉज लेफ्ट क्वाइट फ्री इन हिज यंगर डेज, और जब वो छोटा था तो उन दिनों हम उसको बिल्कुल फ्री छोड़ दिया करते थे। एंड स्पेंड हिज टाइम, और वो अपना टाइम जो था वो बिताता था इन प्लेइंग, खेलने में, रनिंग, दौड़ने में, इनटू द किचन, रसोई में, एंड गोइंग टू स्लीप इन आवर बेड्स, और हमारे बिस्तरों में भी वो सो जाया करता था। वन डे एन एक्सीडेंट बिफेल हिम, और एक दिन उसके साथ एक एक्सीडेंट हो गया। आई पुट पॉइजन, मैंने एक पॉइजन रख दिया, टू किल द रैट्स, चूहों को मारने के लिए, दैट आई गॉट इनटू माय लाइब्रेरी, और जो चूहे मेरी लाइब्रेरी में हो गए थे उनको मारने के लिए मैंने जहर रख दिया, और जहर को यहाँ पे ब्रैकेट में रखा गया है, वो बैरियम कार्बोनेट था। ब्रूनो इंटर्ड द लाइब्रेरी, और ब्रूनो जो है वो लाइब्रेरी में गया, एज ही ऑफन डिड, जैसे कि वो जाया करता था। एंड ही एड सम ऑफ द पॉइजन, और उसने कुछ जहर उसमें से खा लिया। पैरालिसिस सेट इन टू द एक्सटेंट दैट ही कुड नॉट स्टैंड ऑन हिज फीट, और उसको पैरालिसिस हो गया, उसको लकवा हो गया, और वो अपने पैरों पे नहीं खड़ा हो पा रहा था। बट ही ड्रैग्ड हिमसेल्फ ऑन हिज स्टम्प्स टू माई वाइफ, ओके, और फिर वो घसीटता हुआ, ड्रैग करता हुआ, अगले पैरों पे पटकता हुआ अपने पैरों को, तो वो मेरी वाइफ के पास पहुंचा। हु कॉल्ड मी, मेरी वाइफ ने मुझे बुलाया। आई गेस्ड व्हाट हैड हैपन, मैंने अंदाज़ा लगाया कि क्या हुआ होगा। ऑफ आई रस्ड इन द कार, तो मैं कार में दौड़ा, टू द वेट्स रेजिडेंस, और उसको लेके डॉक्टर के पास गया। ए केस ऑफ पॉइजनिंग, और बताया कि जहर खाने का मामला है। टेम बियर, पालतू भालू है। बैरियम कार्बोनेट, इसने खा लिया है। व्हाट टू डू, अब क्या किया जाए। आउट केम हिज मेडिकल बुक्स, और उसने अपनी मेडिकल की बुक्स को निकाला। एंड ए फेवरेट रेफरेंस इन टू इंडेक्स बिगेन, और उसने इंडेक्स को ढूंढना शुरू किया। व्हाट पॉइजन डिड यू से, आपने, डॉक्टर ने कहा कि आपने कौन सा पॉइजन बताया था सर। बैरियम कार्बोनेट, सर बैरियम कार्बोनेट, ओह यस, बैरियम सॉल्ट्स, बैरियम कार्बोनेट, बैरियम कार्बोनेट। सिम्टम्स, पैरालिसिस है ना, ट्रीटमेंट, इंजेक्शंस टू जस्ट ए मिनट सर, कि सर मैं अभी इसको ना इंजेक्शन या दवाइयाँ दे देता हूँ, ये ठीक हो जाएगा। आई विल ब्रिंग माई सिरिंज, तो वो अपना इंजेक्शन लेके आया, एंड द मेडिसिन, और दवाइयाँ लेके आया। एट डैश बैक टू द कार, और वापस कार में। ब्रूनो स्टिल फ्लॉन्डरिंग, और जो ब्रूनो जो था वो अभी भी फ्लॉन्डरिंग मीन स्ट्रगलिंग टू मूव, चलने के लिए संघर्ष कर रहा था, फ्लॉन्डरिंग कर रहा था, स्ट्रगलिंग टू मूव अबाउट ऑन हिज स्टम्प्स, अपने पैरों पे,
बट क्लियरली वीकनिंग रैपिडली, बट वो अब और भी कमज़ोर होता जा रहा था। सम वोमिटिंग, उल्टियाँ कर रहा था। हैवी ब्रीथिंग, लंबी लंबी सांसें ले रहा था। विद हीविंग फ्लैंक्स, हीविंग मीन क्या है यहाँ पे, सांस लेना, डीप ब्रेथ सांस लेना। फ्लैंक्स है द साइड ऑफ द बॉडी बिटवीन द रिब्स एंड हिप्स, है ना। जब वो सांस ले रहा था तो हैविंग फ्लैंक्स, उसकी जो छाती थी वो एकदम से फूल रही थी ना, लंबे लंबे सांस ले रहा था। एंड गैपिंग माउथ, और अपना मुंह बना रहा था, या मुंह को, है ना, वो चौड़ा मुंह करके सांस लेने की कोशिश कर रहा था। शो होल्ड हिम एवरीबडी, कि हर कोई से पकड़ लो। इन गॉज द हाइपोडर्मिक ब्रूनो स्केल्स, तो ये जो हाइपोडर्मिक क्या है, ए लॉन्ग नीडल, कि मैं इसको इंजेक्शन लगा रहा हूँ। इन गोज द हाइपोडर्मिक, मैं इसको इंजेक्शन लगा रहा हूँ। ब्रूनो स्केल्स, ब्रूनो को, है ना, ब्रूनो चिल्लाया, स्केल्स किया। 10 cc ऑफ द एंटीडोट इंटर हिज सिस्टम विदाउट ए ड्रॉप बिंग वेस्टेड, तो 10 cc की दवाई जो थी, एंटीडोट जो था, है ना, उसके अंदर भेज दिया गया, एक भी बूंद बिना खराब किए हुए। 10 मिनट्स लेटर, 10 मिनट के बाद, कंडीशन अनचेंज्ड, कंडीशन वही की वही रही, कोई चेंज नहीं हुआ। अनदर 10 cc इंजेक्टेड, एक और इंजेक्शन 10 cc का उसको दिया गया। 10 मिनट्स लेटर, 10 मिनट के बाद, ब्रेथिंग लेस स्टेटरस, और ब्रेथिंग जो थी, सांस जो थी, वो स्टेटरस हो गई, खराटे कम हो गई। जो पहले वो खींची की सांसें ले रहा था ना, वो आराम से आने लगी। ब्रूनो कैन मूव हिज आर्म्स, ब्रूनो जो था वो अपने अगले पैरों को हिला सकता था, टांगों को हिला सकता था। एंड ए लिटिल ऑल्दो ही कैन नॉट स्टैंड यट, थोड़ा थोड़ा हिला सकता था, बट वो अभी खड़ा नहीं हो सकता था। 30 मिनट्स लेटर, 30 मिनट के बाद, ब्रूनो गेट्स अप, ब्रूनो खड़ा हुआ। एंड हैज़ ए ग्रेट फीड, और उसने अच्छा खाना खाया। He looks at it disdainfully, as much as to say, what is barium carbonate to a big black bear like me, और disdainfully mean उपेक्षा पूर्वक, ऐसे कहते हुए देखा जा सकता था या सोचा जा सकता था क्या, कि जो बेरियम कार्बोनेट है एक बड़े से काले भालू का क्या बिगाड़ सकता है। ब्रूनो इज स्टिल ईटिंग, और ब्रूनो अभी भी खा रहा था। So up to here we have done it. So next part we will do in the next video. Thank you. Have a nice day.